Good morning, all of you. Today, the lecture is on Coulomb's law, vector form. In the previous lecture, I told you that the Coulomb's law in scalar form. It is the form of scalar form in which you are only finding the magnitude of the electrostatic force between 2 point charges. In this lecture, I am going to tell you that how to find the uh, direction of that force and how you will define that this force is in vector form and Coulomb's law gives the force in vector form. Firstly, you have to know that which quantities are called vector quantities. Those quantities, those physical quantities which have magnitude and as well as direction, they are called vector quantities. And they also follow vector addition laws. And you know that force is a vector quantity. Thus, the Coulomb's law has a vector form. In the figure A, you are seeing that this is O. This is reference point, and from this reference point, this the charge Q has position vector R. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका position vector यहाँ से क्या है? R है, R1 है. And the position vector of charge Q2 is R2. इस Q2 का position vector यहाँ से क्या है? R2 है. Position vector आपको मैंने previous क्लास में बताया हुआ है 11th में. ये पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन बताता है इस पॉइंट के रेफरेंस में, ठीक है. एंड देयर इज आल्सो ए वेक्टर व्हिच इज जॉइनिंग द लाइन द चार्जेस q1 and q2 which is r21 equal to r2 minus r1. In the bold written words are vector here. r21 r2 r1 are vector, r1 r2 is vector, ठीक है. Then this we have a position of q1 and q2 with respect to O, and also with respect to q1 the position of q2 is given, that is r21 which is equal to r2 minus r1. And we have r21 is equal to r2 minus r1 from the addition law, triangle addition law of vectors. This is the resultant of these two vectors joining q1 and q2 which is r21. According to Coulomb's law of electrostatic force, the electrostatic force between 2 point static charges is equal to F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. And if we are going to write it in a vector form, then see this F21. It is written as F21. It means F21 is the force on चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. फोर्स किस पर? Q2 पर. किसकी वजह से? Q1 की वजह से. तो बेटा फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से. तो दैट इज दिस इज ए सोर्स चार्ज. Q1 को क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज. एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q2. इट मींस दिस इज ए टेस्ट चार्ज. तो कभी कभी हम सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज बोलेंगे तो इससे आपको पता चलना चाहिए सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख रहे हैं, और जिस पर देख रहे हैं वो क्या होगा? टेस्ट चार्ज. देन दिस F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, एंड वी हैव 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 mod. Mod means it is always positive. Mod of R21 vector line joining Q1 to Q2, and along Q1 to Q2 is vector R21 square and R21 cap. R21 is the unit vector. Unit vector only gives the direction and it has unit magnitude. As I have told you earlier, R21 is unit vector along vector R21. Then this Coulomb law becomes in vector form. This F21 is vector because it is written in bold, and R21 is also a vector, and this will give the direction to this quantity 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R21 square. इसको ये क्या करता है? इसमें मल्टीप्लाई होकर इसको क्या देता है? डायरेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. इसलिए F21 क्या हुआ? वेक्टर हुआ. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म.
यहाँ पर आप देख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये R21 होगा, R21 कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। कैप R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ये यूनिट वेक्टर होगा किसके अलोंग, वेक्टर R21 के अलोंग। इसको सही कर लीजिएगा, वेक्टर R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज Q1 चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से क्या होगा, F12 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप क्या बेटा, द वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1, और वो वेक्टर क्या है, R12 है। और इस R12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है। ये R12 कैप इज इक्वल टू होगा R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको क्या मिल रहा है, F21 ये भी वेक्टर है और F12 ये भी वेक्टर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर हम एक की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे की डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इससे हमको मिल क्या रहा है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर्स लगे हैं दोनों के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्या होगा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, और इसी की वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में फोर्सेस की डायरेक्शन को डिसाइड कैसे करें। हमने फोर्स इसका एक वेक्टर फॉर्म तो लिख दिया, लेकिन अभी भी हम फोर्सेस की डायरेक्शन को नहीं निकाल पाए, हमने केवल वेक्टर फॉर्म लिखा है। अब डायरेक्शन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, कैसे हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आपने एक फिगर देखा यहाँ पे, ये फिगर, दिस इज फिगर बी, this is the figure of your NCERT book. This is the figure of your NCERT book. In Coulomb's law, you can find this. And in this figure, you are seeing that Q1, Q2 is greater than 0. Q1, Q2 is greater than 0. It means the product of the charges Q1 and Q2 is positive, which is written here. If this is positive, it means both of the charges are of same type, either positive positive or negative negative. If they are only positive positive, or if they are only negative negative, then they called of same types, and if they are of same types, they repel each other. If they are of same types, they repel each other. Then the direction of force, suppose करिए Q1 की वजह से Q2 पे हम देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, Q1 से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम Q1 एंड टुवर्ड्स Q2। तो F21 की डायरेक्शन क्या हो गई, Q1 की से बाहर की तरफ, किसके अलावा, Q1 से Q2 के अलावा। ऐसे ही Q2 के लिए वजह से अगर इस पे फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा, F12 which is outwards from Q2, this is the source charge and this is the test charge. This is the direction of force F12 which is outwards from Q2 to Q1. And if this is the source charge and this is the test charge, then the direction of force is F21 which is along Q1 to Q2. Okay. And the second is, if the product of these two charges is negative, it means if one is positive then second is negative, or if one is negative then second is positive, then the product will be negative. It means the product is less than 0, which is written in the figure, Q1 into Q2 is less than 0. अगर ऐसा है बेटा तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, along हो जाएंगी। इनमें इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव। इट मींस सोर्स चार्ज आपका
खींच रहा है, जिस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो इसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपका ये चार्ज इस तरफ आने का प्रयास करेगा, और ये जो चार्ज है इसकी वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स F21 किस तरफ है बेटा, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, इधर हो जाएगा इनवर्ड्स, ठीक है, किस तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये सोर्स चार्ज है तो आपका फोर्स क्या होगा, F12, और एक इधर की तरफ लगेगा Q2 की तरफ। ये दो पॉइंट्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि डायरेक्शन आपके फोर्स की क्या होगी कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ का आपने आज वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, और इसमें आपको ये बहुत जरूरी है कि आप फोर्स की डायरेक्शन को जरूर बताएं किस तरफ होगा, और जब आप इसकी डायरेक्शन को क्लियर कर पाते हैं तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स और सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स के थ्रू जाइएगा और देखिएगा कि आखिर में जो एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, या फिगर को आप देख के यहाँ से बना के कॉपी में, फिर इन पॉइंट्स को पढ़िएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा अगर जो भी डाउट होगा उसको आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और ये आपका असाइनमेंट है, इसमें आपको पॉइंट चार्ज को डिफाइन करना है, और आपको डिफरेंस बताना है कूलाम के स्केलर और वेक्टर फॉर्म में। ये मैंने आज बता ही दिया है थोड़ा सा। एंड ए वाई वेक्टर फॉर्म इज नीडेड, ये वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया। और एक चीज और बता दी है आपको, कूलाम्ब लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि नहीं, इसको आप खुद से सर्च करके निकालें, ठीक है, और है तो क्यों है। थैंक यू वेरी मच।